I was telling you that in both the case, whether that cruelty is active or passive, but this may happen with individual level, at the larger institution level, or the business level. Okay. Anyhow, it is going to cause animal cruelty. Example: violent training, culling methods used by the organized forms. Okay, dog fighters in case of individual level, all they are in this cruelty and abuse. Okay, so after understanding this cruelty, we should also know that what cruelty means as per this law under this section 11. So as per this section level, because this section level 11, you should not forget it, because wherever you go, the moment if you talk about animal cruelty, so they have to sell that section 2 under the chapter 3. Okay, what this section 11 means? This section employs the level of punishment for ill-treating either owned or unowned animals if any person or owner of an animal. Okay, so now we are going to discuss one by one. Okay, what are those called cruelty? Tortures such as beats, kicks, overrides, overdrives, overloads, torture causing a wound, sore and suffering. Here they will not tell beating means किसको beating कहा जाता है. They will never define under this section. Only they say that these are the intention, we call them as a cruelty. Overrides, overdrives, ये सब rules में बताया जाएगा. किसको आप कहते हैं override, किसको कहते हैं आप overdrive, किसको कहते हैं overload. Okay, वो सब आपको rules में बताया जाएगा. ड्राट एनिमल रूल्स में जाएंगे तो कितना लोड आप एनिमल को डाल सकते हैं. ठीक है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो कितना स्पीड में जा सकते हैं. देयर ऑल सेड एंड एक्सप्लेन्ड इन द रूल्स. ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ड्राफ्ट रूल्स हो सकते हैं, सारे रूल्स बनाए गए हैं एज पर दिस पीसी है. देयर इट विल टेल इन डिटेल, बट हियर दिस सेक्शन टेल्स दैट. So 11A says that if you beat the animal unnecessary, if you kick the animal unnecessary, if you override or overdrive or overload or causing injury, any torture or suffering is called as a cruelty. If any work is taken from animals which is unfit for the same reason. Okay, छोटा एनिमल है, जितना अडल्ट एनिमल का काम लेना चाहिए वो स्मॉल एनिमल से ले रहे हैं. जो एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल में जिस एक्टिविटी आपको लेना नहीं चाहिए वो आप एडवांस प्रेग्नेंट एनिमल से ले रहे हैं. सो जिसके लिए फिट नहीं है उससे अगर आप काम लेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए क्रुएलिटी. willfully and unreasonably administer any injurious drugs or injurious substance to any animal. ठीक है, बहुत सारे चीज आजकल नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब क्रूएलिटी काफी हद तक कम हो गया. काफी हद तक मतलब काफी हद तक कम हो गया. ठीक है, लाइक willfully and unreasonably administers any injurious drugs, वो सब आजकल नहीं हो रहा है because of availability of primary health center in the rural area. Otherwise so many crude methods were there. They used to put like kerosene oil for the wound. Okay, plant extract for the wound healing purpose to create the inflammation, plant extract for the some other purpose. Okay, some are Ayurvedic treatment is different, but some are unacceptable due to that pain and suffering by virtue of their treatment approach. Okay, so they are also called as a cruelty. Convey or carriers, whether in or any vehicle, in such a manner or position which is subjected to unnecessary pain or suffering. Here carriers means जिसके लिए एनिमल को यूज किया जा सकता है. ओके, बुलक कार्ट हो सकता है, रेस कार्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है. बहुत सारे कार्ट्स अवेलेबल है रूरल एरिया में और बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो चुका है. जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल जो बुलक कार्ट्स थे सारे ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं आज के दिन में. बट इवन देन कोई भी ऐसा लगता है कि कार्ट डिजाइन जो एनिमल को सफर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सच कार्ट्स शुड नॉट बी यूज्ड, एंड इफ दे आर यूज्ड then they are considered to be a cruelty. Okay, so that's why faulty design carts. The E says under the 11E, confines any animals in any cage or other receptacles which does not measure sufficiently in height, length, breadth to permit the animals a reasonable opportunity for the movement. मतलब इतना छोटा केज में आप रखो, एनिमल को मूवमेंट कर नहीं पाता.
That is also cruelty. This was happening with respect to dogs. Okay, छोटा केज है उसी में 3-3 डाल देते थे. So उस situation में it is considered as cruelty. Keeps for an unreasonable time any animal chained or tethered using a unreasonably short or unreasonably heavy chain or cart. Okay, बिना जरूरत. Okay, आपको लगता है कि आपका 1-2 घंटे के लिए एनिमल बांध के रखना था, कुछ काम के लिए आपने रखा, बट उसके बाद आप भूल गए, एनिमल वही पड़ा है क्योंकि उसको रूटीनली बांधते नहीं है, बट आपने छोड़ दिया जिसकी वजह से एनिमल फूड एक्सेसिबल नहीं हो रहा है. सो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ. दिस इज वेरी कॉमन इवन नाउअडेज आल्सो. ओके, इट इज ड्यू टू इग्नोरेंस वाले, उसको बांध देते हैं, बाद में खाना पानी देना भूल जाता है. सो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ क्रुएल्टी. Being the owner, neglect to exercise by keeping a dog habitually chained up or kept in a close confinement. This is very common in case of metropolitan cities. जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, due to personal reasons, they don't want to take these dogs for the exercise or walk, जिसकी वजह से एनिमल परेशान रहता है. So on their own, they may not feel that it is necessary, but the one who has seen the dog in the apartment, अगर लगता है वो एनिमल लवर होगा, पता है आपको घर के अंदर बांध के रखा है, कभी अंदर बाहर लेके नहीं गए, उसको चैलेंज किया जा सकता है, provided he has that rights. Okay, so that is also considered as a cruelty. Being the owner of animal fails to provide such animal with sufficient, such animal with sufficient food, drink or shelter. तो ये generally called as a negligence. Okay, that is also cruelty. Abandoning any animals or diseased or disturbed animals which are unfit to use. Okay, उसको अपने छोड़ देते, कहीं दूर जाके, डाग में भी करते हैं, बिल्ली कहीं दूर जाके छोड़ देते हैं, डाग को कहीं दूर जाके कभी कभी ट्रेन में डालते हैं, ट्रक में डालते हैं, ऐसे ऐसे छोड़ के आ जाते हैं. कारण कुछ भी हो सकता है, बट दे आर ऑल कंसिडर्ड एज ए क्रूएल्टी. अगर किसी को पता चलेगा आपका डॉग था, आपका कैट था, आपका एनिमल था, अगर किसी ने प्रूव कर दिया आपने ऐसे कर दिया, सर्टेनली इट इज एन ऑफेंस. Willfully permits any animals which is affected with contagious infectious disease or disabled animal to go any street. ये बहुत कॉमन है इंडिया में. जब तक वो यूजफुल है उसको बहुत प्यार देते हैं, बहुत केयर करते हैं, कंसर्न करते हैं. जिस दिन लगता है कि उसको यूजलेस है, then they will let loose the animals in a unwanted place. That is also cruelty. Offers for the sale animals which is suffering pain by reason of mutilation, starvation, thirst, overcrowding or other ill treatment. All they are called as a cruelty. L, this section 11L, again it comes in the other chapter also. That's why you have to be a little bit remember this one. Mutilates any animals or kill any animal by using any method of strychnine injection in the heart or in any other unnecessary cruel में. यहाँ दो चीज है. One is mutilation. को काफी ट्रेडिशन से जानवर का कुछ पर्टिकुलर पार्ट को काट देते हैं ड्यू टू वर्च्यू ऑफ देयर बिलीफ और ड्यू टू कल्चर, व्हाटएवर इट मे बी. पार्ट ऑफ द ऑर्गन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, जैसे रिमूवल ऑफ टंग, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द जॉ, ठीक है, रिमूवल ऑफ आई बॉल, रिमूवल ऑफ टंग, रिमूवल ऑफ टेल, ओके, रिमूवल ऑफ अडर. कुछ कुछ ट्रेडिशन में, कुछ कुछ कल्चर में है जिसपे एनिमल को kill करके, after killing the animals they try to remove these parts and they use it for some worshipping purpose. And such mutilating process को हम cruelty भी seriously declare किया जा सकता है. और killing such animals with the help of strychnine, which is very painful. Nowadays it is almost absolute, but even then as per the law you should remember that this section 11L says that mutilates any animal or killing any animal by virtue of strychnine or any other cruel manner is a cruelty. M says that in order to provide entertainment, यहाँ भी ऐसे है, तो पहले होता था बट आजकल नहीं हो रहा है. एंटरटेनमेंट जैसे बालों लेके गांव में आते थे, मंकी लेके आते थे, मंगूस लेके आते थे, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी था, तो रिक्रिएशन पर्पस के लिए गांव आते थे. So almost nowadays it is absolute because of this stringent rules, but that is also considered as a type of cruelty. And कोई भी एनिमल ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एज ए बेट, ऐसे लालच अगर आप यूज करते हैं, that is also a cruelty. Okay, then N says that organizers or use or act in the management or any place for animal fighting for the purpose of
बेटिंग एनी एनिमल, प्रमोट्स और टेक पार्ट इन एनी शूटिंग एनिमल्स। इसमें दो चीजें, एक तो स्पोर्ट्स, दूसरा ऐसे एनिमल को लालच दिखा के उसको आप फाइटिंग करवाना दिखाना चाहेंगे, और फॉर द गेम पर्पस, जस्ट फॉर द रिक्रिएशन पर्पस, शूटिंग पर्पस आप उसको यूज करना चाहेंगे। कहीं टांग दिया उस एनिमल को, आप पिस्तौल लेके मारना चाह रहे हैं, पत्थर लेके मारना चाहते हैं। आज भी है कुछ कुछ जगह में पिग को सारे all the four limbs they try to tie to their poles and they try to hit and kill it. Okay, so these are all called as a cruelty. But if you see the punishment, okay, so all these cruelty what we discussed under the section 11, okay, up to n, from A to n, they are punishable, they are called as offense. But if you see the penalty, it is very nominal. Just I'll read out. With the fine which shall not be less than 10 rupees, बट इट मे बी एक्सटेंड टू 50 रुपीज अगर वो डिफॉल्टर दूसरा बार अगर हो जाएगा। तो पहली बार तो 10 रुपया है, अगर दूसरा बार अगर हो जाएगा तो 50 रुपीज है। अगर रिपीटेडली अगर करेगा देन दैट ऑफेंस विल बी 25 रुपीज, मोर देन 25 रुपीज, और इट मे गो अप टू 100 रुपीज। आज के दिन में हर आदमी दे देगा एक्सेप्ट इम्प्रिजनमेंट, ओके, अप टू 3 months, विच इज जनरली नॉट डन, जिसकी वजह से लोग रूल होने के बावजूद भी उसको दे कीप ऑन डूइंग इट। हाउएवर रिसेंटली this government, central government, has proposed a fine up to 75,000 or 5 years jail if he is found to be a defaulter. Okay, this is still under the consideration. It is not yet approved, but it is under this serious. You can see this one look point. So जो rule इतना साल से चल रहा था उसको उन्होंने proposing penalty up to 75,000 or 3 times the cost of the animals with the jail term up to 5 years or both if an act of an individual or an organization leads to an animal's death. Okay, so once this comes, probably people may become little more serious or they may escape from that situation. काफी बार ऐसे हो जाता है, वो उसको नेग्लिजेंसी जानबूझ के नहीं होता है, बट उसको कुछ ना कुछ तो कारण की वजह से फंस जाता है, क्योंकि वहाँ सीरियस ज्यादा नहीं इसलिए। बट अभी क्या है, अगर ऐसे एनिमल भी दिख भी जाएगा, कोई उसमें टच करने में नहीं चलता, उनको लगता है कि हम फंस जाएंगे करके, जैसे एक्सीडेंट में होता है। But anyway, it's going to be a serious concern in the coming years, even for the veterinary, क्योंकि veterinary को बहुत बार ऐसे हो जाता है unintentionally or ignorantly वो फंस जाता। But what are the exception? So these are the following are exception for the penalizing or considered to be an offense, जैसे de-earning of cattle, castration, branding or nose roping, okay, in a prescribed manner। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से करेंगे, जहां कहा गया अगर लोकल एनेस्थीसिया दे के करके कास्ट्रेशन करना है देन आपको लोकल, अगर आप लोकल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं देन आल्सो इट इज ए क्रुएलिटी। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी डॉग इन द लीथल चेंबर्स प्रोवाइडेड विद अ प्रायर परमिशन, ओके, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस। एग्जामिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी एनिमल अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम ऑफ बीइंग इन्फोर्स। कभी कभी एनिमल सीज हो जाता है बट इतना खराब परिस्थिति रहता है उसको आप ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, गौशाला भी नहीं भेज सकते हैं, तो in front of the magistrate or the local authority tahsildar under the supervision of veterinarian it can be euthanized. Okay, any matter dealt with chapter 4 which will be discussing, all they are considered to be what you can say non-offense. Commission or omission of any act in the course of a destruction or the preparation of destruction of any animal as a food for the mankind unless such destruction or preparation was accompanied by the infliction of unnecessary pain or suffering। मतलब कोई भी एक्टिविटी में एनिमल को आपको इतने से करना पड़ रहा है, उस समय आपका unnecessary pain और suffering अगर वो भी जाता है, उसको भी आप कंसिडर करते हैं एज ए नॉन ऑफेंस और नॉर्मल, ओके, व्हिच इज आल्सो एक्सेप्टेबल, वी मीन टू से। दिस इज अप टू सेक्शन 11 व्हिच वन शुड नो इट। ओके, सेक्शन 12 पेनल्टी है which is exception to the all other cruelties which were dealt under the section 11। ओके, 11 के अलावा एक और एक एक्टिविटी है, उसको एक टाइम में काफी सीरियसली लिया गया है, इसलिए उसको अलग सेक्शन में डेल्ट किया गया। पेनल्टी फॉर प्रैक्टिसिंग फूका और धूमदेव। Nowadays it is not there, but even then for the sake of knowledge we should know it. What is fúka? Fúka means just like blowing air into the vagina. If a person practicing fúka or dhumdev or any other operation including the injection of any substance to improve the lactation which is injurious to the health of the animal, okay? As I told you, it's almost outdated, just for the knowledge sake, just you should know it. So under this situation which is punishable,
which may extend to the 1,000 rupees, or imprisonment for the term which is may extend to 2 years. Okay, so this is section 12. section 13, destruction of suffering animals. जो भी हमने डिस्कशन किया 11 के अंदर, सेक्शन 11 के अंदर अंडर द पॉइंट 1, जिसके अंदर कोई भी एनिमल को लगता है कि उसको रखने में कोई फायदा नहीं है, और लगता है कि इट इज मोर क्रूअल देन एनिमल हैज टू बी यूटिलाइज्ड ह्यूमनली after the getting the certificate from the veterinary officer, which is dealt under the section 13. Okay, this is what the chapter 3, which is considered as a cruelty in general, one should know it. Okay, now chapter 4, experimentation of animal. Because you are all PG students, also you will be doing one or other activities, research program will be taking it. So under that, this play a major role. Okay, what this chapter 4 says, that it deals with the experimentation animals, section 14. Section 15 talks about the committee, main committee we call it as a CPCSEA, which is under this section 15. Okay, this also called as main committee, committee for control and supervision of experiment animals, which is called CPCSA, which is dealt under the 15. 16, उस कमिटी में कौन कौन रहता है, जैसे हमने बोर्ड में डिस्कस किया बोर्ड ऑफ द कमिटी, वैसे स्टाफ ऑफ द कमिटी. 17 में ड्यूटीज ऑफ द कमिटी और उसका पावर क्या है इन मेकिंग द रूल. 18 में पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, जैसे हम लोग सडनली सरप्राइज विजिट करते हैं, उसका पावर 18 में डील किया जा सकता है, वो पावर वो कमिटी के लिए है. 19, power to prohibit the experimental animals at any time if they found that these animals are not being well taken. This committee has the power to prevent the experiment or to prevent the further doing of the experiment. 20, penalty के बारे में डिस्कस करेंगे. Again here I am not going in detail, जितना जरूरत है वो आपके लिए उतना ही हम बताएंगे. पहले experimentation on animals. फर्स्ट तो आपको समझना चाहिए है कि किसको हम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं. It is considered lawful for experiments, okay, on animals for the purpose of advancement by new discovery of physiological knowledge or new discovery of knowledge which will be useful for saving or for the prolonging our life or alleviating suffering or combining any disease whether of human being or animal or plant. Okay, आपका इंटेंशन वेरी क्लियर होना चाहिए. ठीक है, जो भी डिस्कवरी करेंगे, जो भी आप रिसर्च करेंगे, it should enhance the knowledge. Okay, that knowledge will be useful for the saving the life, alleviating the suffering, okay, and combating from the any important disease. Okay, अभी जैसे एग्जांपल था कोरोना वैक्सीन के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को फ्रीडम दिया गया कि टू यूज द एनिमल स्ट्रेट अवे बाय गिविंग डायरेक्टली ग्रांटिंग द परमिशन. तो ये सब सुपरविजन है अंडर दिस चैप्टर 4 डील्स. ओके, कोई भी स्किल के लिए नॉलेज आप गेन करने के लिए बट आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट व्हाट वी कॉल इट, दैट कैन नॉट बी मेड ट्रायल ऑन द एनिमल. उसके लिए अल्टरनेटिव चीज बहुत सारे चीज बनाया गया है. पहले हम लोग डिसेक्शन करते थे, जो भी करते थे हम स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो सब आजकल अलाउड नहीं. उसको हम लोग कभी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कहते. एक्सपेरिमेंट्स मींस न्यू डिस्कवरी फॉर द betterment of the human life, animal life or plant, then only it's called as experiments. उसके लिए मेन कमिटी बनाया गया CPCSE, आपका वेबसाइट सेपरेटली डेडिकेटेड वेबसाइट है जिसपे सारे चीज डील किया जा सकता है. वो सारे वेबसाइट यू कैन हैव अ लुक. जस्ट आई विल टेल ओनली 2 पॉइंट्स. व्हाट इज दैट, ड्यूटी क्या है, CPCSE का ड्यूटी क्या है. वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैरिंग एन एक्सपेरिमेंट. पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी है, किसी प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स दिया जाता है, इसको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो, ट्रायल करना चाहते. कोई भी एक ड्रग है उसको दिया जाता था, वो लोग 40 गिनी पिग लेते थे, 40 ट्राई माइस लेते थे, उसको अपनी मर्जी से एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देता था, जिसमें हो सकता फुल सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल किया जा सकता था. अभी क्या है, बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट पहले जहां आप एनिमल रखेंगे दैट शुड बी रजिस्टर्ड. ओके, सो दैट एनी एनिमल हाउस और लैबोरेटरी एनिमल हाउस शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द CPCSA. जैसे हमने बताया गौशाला शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. उसी तरह से आपका जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टेशन होगा दैट शुड बी अंडर रजिस्टर्ड अंडर द CPCA. उसका काम ही यही है. वो पहले जब भी प्रपोजल भेजा जाएगा वो विजिट करवाएंगे एक्सपर्ट से, वो देखते हैं आपके पास रियली सच कुछ फैसिलिटी है या नहीं है. अगर है तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ लाइसेंसिंग.
वहां भी लाइसेंसिंग किस पर्पस के लिए देते हैं? क्या आप एनिमल को रेयरिंग करने के लिए देते हैं, एक्सपर्ट दोनों हो सकता है। ब्रीडिंग इन हाउस मतलब आप ब्रीडिंग करके सेल किया जा सकता है, या आप एनिमल लाके वहां एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे आईवेरी एग्जांपल है, बरेली में आपका दोनों लाइसेंसिंग है, ब्रीडिंग इन हाउस मतलब हम ब्रीड करके दूसरों को सेल किया जा सकता है, दूसरा हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया जाए, दोनों का लाइसेंस डिफरेंट होता है, उसका काम सीपीसीएसए का। Next is experiments are performed with the due care and humanity and those involving the operation has to be performed under anesthesia. वो सब एक्टिविटी यही सुपरवाइज करता है। Experiments on animals are avoided if other teaching devices such as books, models, films and like are may equate. इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले जब आप प्रपोजल भेजते हैं वो देखते हैं क्या इस एक्सपेरिमेंट अगर हम रोका जाएगा तो क्या सचमुच कोई लॉस होगा, या कोई ऐसे अल्टरनेटिव है इस नॉलेज को जो आप गेन करेंगे, कोई बुक्स में अवेलेबल है, कोई मॉडल अवेलेबल है, ऑलरेडी डाटा सफिशिएंट, अगर वो कर तो आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए परमिशन नहीं दिया जा सकता है। सिमिलरली पहले हम लोग लैबोरेटरी एनिमल में गिनी पिग, रैबिट्स, फ्रॉग्स, रैट्स, सो यूज दीज एनिमल्स, वो देखते हैं कि हायर स्पीसीज पे अगर आपने एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया है क्या वही एक्सपेरिमेंट हम लोअर स्पीसीज में कर सकते नहीं कर सकते। इसीलिए ऑलवेज any experiments generally they started with the mice, rat, guinea pig, rabbit, then next species like that. Okay, so depending upon their real requirement of the animals उसी एनिमल को परमिशन दिया जा सकता है। अगर वो एनिमल रैट में किया जा सकता है देन रैबिट में परमिशन नहीं दिया जा सकता। ओके, एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग मैनुअल स्किल। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप कहते हैं कि मैं इसमें ट्रेनिंग देना चाहता हूं, उसके लिए हमको 20 एनिमल चाहिए, 20 एनिमल स्टार्टर करना चाहता हूं क्योंकि उतने से हम ट्राई करना चाहते हैं, नो दे विल नेवर गिव। एक्सपेरिमेंट्स आर प्रॉपर्ली लुक आफ्टर बोथ बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स विद द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। इसलिए जो भी एनिमल एस्टेब्लिशमेंट होता है साल में एक बार ऑफिशियली दे विजिट, दे चेक आवर रिकॉर्ड्स, जितना एनिमल आपने रखा था, कितना एनिमल आपने यूज किया, कितना आपने यूथेनेसिस किया, कितना आपने उसको इंसरेट किया, वो सब रिकॉर्ड देके सुपरवाइज करेंगे। इसमें कंपोजिशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया है कि सीपीसीएसई इज ए मेन कमेटी, वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में आके चेक नहीं करेगा, वो कुछ आपको सजेस्ट करेगा इंस्टीट्यूट लेवल में एनिमल एथिकल कमेटी बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड आईएईसी। ओके, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी, जिसमें अंदर एक कंपोजिशन रहता है। जितने भी आप लोग ओडब्ल्यू देते हैं, वेदर इट्स एमएससी और पीएचडी, एवरीवन हैज टू प्रोड्यूस वन सर्टिफिकेट। हो सकता है हम लोग एनिमल साइंस एक्सटेंशन वाले, एलपीएम वाले, ठीक है ना, और सोशल साइंस एक्टिविटी में एनिमल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो हम स्ट्रेट अवे लिख देते हैं कि इसका आईएसी अप्रूवल नहीं है। अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिसमें एनिमल का इन्वॉल्वमेंट है, वो एनिमल इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो वो भी आईएसी का सर्टिफिकेट आपको ओडब्ल्यू के साथ अटैच करना पड़ता है। अगर उस एक्सपेरिमेंट में कोई भी ऐसी चीज मैनिपुलेशन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, देन दैट आईएसी अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। बट इफ देयर इज एनी type of activities which requires as per the rules, then permission is to be taken from the IAC. IAC का एक पावर दिया गया है, स्मॉल एनिमल्स अपने लेवल में वो परमिशन दिया जा सकता है, लार्ज एनिमल्स मींस इट हैज टू गो टू द सीपीसीएसी, वही उनकी पावर है। तो इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने समय यू हैव टू थिंक वेरी लॉजिकली, सो बिफोर मेकिंग प्रपोजल। एंड दिस कमिटी 3 इयर्स के लिए लास्ट करता है। हर लेवल में आईवेरी बरेली में एक सेपरेट आईएसी है, बेंगलोर में सेपरेट आईएसी है, वेटनरी कॉलेज सेपरेट, अपने अपने इंस्टीट्यूट के लेवल में वो करता हूं। सीपीसीएसी एक नॉमिनी, ए नॉमिनी ऑफ सीपीसीए हु इज रिप्रेजेंटिंग द सीपीसीएसी इज द की पर्सन इन डिसाइडिंग मेनी ऑफ द फैक्टर। अगर वो नहीं होगा तो आप मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकते, बचाओ कोई भी नहीं होगा तो आप कर सकते हैं, बट ही हैज टू बी देयर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट फ्रॉम द सीपीसीएसी। वो कमेटी के सामने कहना पड़ता है, उसमें देखते हैं कि कोई क्रूएलिटी इन्वॉल्व नहीं है तो आपको परमिशन दिया जाएगा। अगर लगता है आप अननेसेसरी स्लॉटरिंग करने के लिए प्रपोज किया है, वो कहेंगे 10 की जगह में 8 करो। फिर अगर आप एक्सपेरिमेंट अननेसेसरी 12 एनिमल यूज कर रहे हैं बट 6 एनिमल्स में आपका काम चल जाएगा, दे विल आस्क यू टू रिड्यूस द एनिमल्स। फिर अगर आपका रिपीटेड ब्लड कलेक्शन इन एडवांस प्रेगनेंसी में आप कहेंगे तो एडवांस प्रेगनेंसी में आपको रिपीटेड ब्लड कलेक्ट करने के लिए आपको परमिशन नहीं दिया। आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स दे विल गिव दिस सर्टिफिकेट। दिस सर्टिफिकेट हैज टू बी अटैच्ड अलोंग विद द ओडब्ल्यू। ओके, so in the same CPCAC, so there are other sections. One is power of entry and inspection. जैसे मैंने पहले ही बताया था, साल में एक बार by virtue of their power they will give the time, or surprisingly they may visit your animal house and they may see that how you are being maintained. Nowadays उन्होंने कैमरा भी कंपलसरी कर दिया ताकि वो they want to see the video recording of your experiment also. Under section 9 power to prohibit the experiment. Section 20 penalties. Penalties as on today, so this amount seems to be very meager,
बट अगर आप परमिशन नहीं लेके अगर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं जहां CPCSE का परमिशन चाहिए, it is really a serious offense. Last but one chapter, that's chapter 5, which I'm not going in detail as we are concerned with the livestock. So here it is concerned with the performing animals. Since PCA you have to know little bit, so I'm just giving an example. This chapter 5 section 21 से शुरू होता है. तो उसमें क्या है, exhibits means any animals, okay, if you are exhibiting for the entertainment purpose through some commercial value, okay, through the sale of ticket. So इसमें ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है, उसमें एग्जिबिटर भी होता है, ट्रेनर भी होता है, वो सबको तीनों चीज भी देखते हैं. जो एनिमल रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, और उसके पीछे वो एग्जिबिटर होता है और एक आदमी जो उसको ट्रेनिंग देता है. तीनों के बारे में इस चैप्टर के अंदर डील किया जा सकता है. ट्रेनर, एग्जिबिटर एंड एनिमल ऑन इट्स ओन. ऑल थ्री हैव टू बी अंडरगो सम गाइडलाइंस और व्हिच यू हैव टू फॉलो टू गेट द परमिशन. ओके. तो पहले एक टाइम में था सर्कस बहुत पीक में चल रहा था, उस समय ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था. सबको कहा गया है कि आपको लाइसेंस लेना है, परमिशन लेना. नाउअडेज इस सर्कस पूरा कंप्लीटली बैंड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसलिए इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं. बट इवन देन फॉर जस्ट सेक ऑफ नॉलेज यू हैव टू नो इट. व्हाट इट सेज, सी इफ यू सी द लेटेस्ट दिस इंडिया इज बैंड ऑलमोस्ट ऑल वाइल्ड एनिमल्स को बैन किया गया. सर्कस अगर होगा भी, सो दे आर ऑल एक्सेप्टेबल एनिमल्स, नॉट द वाइल्ड एनिमल्स. ओके. तो सेक्शन 21 तो वर्ड डिफाइन किया है कि व्हाट एग्जिबिट आर एग्जिबिटर एंड ट्रेनर. सेक्शन 22 में रेस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिबिशन एंड ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मिंग एनिमल्स. किस किस में उन्होंने एनिमल को रेस्ट्रिक्ट किया है, किस किस एनिमल्स को बैन किया गया, सब इसमें सेक्शन 22 में डील किया जाता है. सेक्शन 23, अगर आपको मजबूरी है, अगर आपको सर्कस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और लाइवलीहुड आपका उसी से डिपेंडेंट है, काफी कंट्रीज में इसको बहुत साल तक किसी तरह से रीजन से उसको प्रोलॉन्ग किया है कि इसको कैंसिलेशन ऑफ और बैनिंग ऑफ सर्कस. सिंस देयर आर सो मेनी पीपल्स बिहाइंड दैट सर्कस, सो इफ एट ऑल इफ इट इज टू बी कंटिन्यूड, देन दे हैव टू रजिस्टर. ओके, दे हैव टू रजिस्टर अंडर दिस एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. वहां वो रजिस्टर एक एप्लीकेशन होगा, उसमें आपको सारे डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है एनिमल के बारे में. सपोज इफ यू हैव 10 एनिमल्स, सो इंडिविजुअल एनिमल का सारा डिस्क्रिप्शन देके यू हैव टू गेट द सर्टिफिकेट फॉर अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एनिमल. देन द पर्सन बिहाइंड दैट एनिमल, सपोज एलिफेंट होगा, एलिफेंट के बारे में सर्टिफिकेट लेंगे, और उसका ट्रेनर और एग्जिबिटर तीनों का सर्टिफिकेट रहेगा. उसी तरह से in order to get that certificate there is a some fixed fee. ऐसा नहीं कि हाँ मर्जी के हिसाब से आपको उसको परमिशन लेंगे. तो जब फी फिक्स किया गया, नेचुरली दे विल ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट देयर यूज ऑफ एनिमल्स आल्सो. सो इफ दे फील दैट एनी टाइम डिटेल्स जो सही तरह से नहीं दिया है, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है. दे आर ऑल डेल्ट अंडर द सेक्शन 23. व्हाट इज सेक्शन 24? पावर ऑफ कोर्ट टू प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मिंग. पहले परमिशन दिया गया, बट किसी से इंफॉर्मेशन मिला कि दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर द एनिमल अप टू द मार्क, or they are not taking care of the animals as per the requirement. So उस केस में कभी भी कोर्ट उसको ऑर्डर किया जा सकता है to stop that activity. पावर टू एंटर द प्रेमिसेस. एंटर द प्रेमिसेस मतलब सर्कस है, कई भी एक्टिविटी है जहां आपको सडनली पुलिस को लेके, सब इंस्पेक्टर को लेके, आप 10 मिनट्स लेफ्ट, क्विक ले लो. सो जैसे इंस्पेक्टर लेकर आपको सडनली उसको जाके प्रेमिसेस को अटैक कर सकते हैं. अगर मान लीजिए कोई भी प्रीमिसेस में आपको लगा कि someone found guilty, okay, so then this offense it is considered to be offense. किस किस कंडीशन में? if they are not registered. कोई अगर मान लीजिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं किया उस एनिमल को, क्योंकि वो 10 का एनिमल परमिशन लेता है बट उनके पास 15 एनिमल है, उस केस में आपको इसको ऑफेंस माना जा सकता है. सपोज being registered but exhibited or training and any performing which is not registered. जैसे मान लीजिए जिस पर्पस के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया उसके अलावा दूसरा काम ले रहा है उस एनिमल से, देन आल्सो इट्स कंसीडर्ड एज ऑफेंस. ओके. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कंप्लीटली बैन किया है, जैसे बियर, मंकी, टाइगर, पैंथर्स, फॉर द पर्पस ऑफ रीजन फॉर नोटिफिकेशन ऑलरेडी उसको डिटेल्स दिया गया. आज के दिन में कंप्लीट बैन है, बट इवन देन जस्ट फॉर द सेक एनी ऑब्स्ट्रक्शन और विलफुली डिले एनी पर्सन और पुलिस ऑफिसर टू एंट्री. अगर मान लीजिए वो एंट्री करना चाह रहा है, जबरदस्ती आपने रोक दिया, देन आल्सो इट्स कंसीडर्ड एज ऑफेंस. ओके. फेल टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट, ओनरशिप सर्टिफिकेट, देन आल्सो इट्स कंसीडर्ड ऑफेंस. इन दिस केस the fine up to 500 rupees. Okay. Exemption क्या है? Nothing contained in this chapter shall apply to. जैसे ट्रेनिंग ऑफ एनिमल फॉर ए बोनाफाइड मिलिट्री और पुलिस. पुलिस में ट्रेनिंग का डॉग को परमिशन दिया है, परमिशन फॉर द डॉग ट्रेनिंग अंडर द मिलिट्री परमिशन दिया गया, और जोलॉजिकल गार्डन और जू में
एनिमल को एग्जिबिट करने के लिए परमिशन, दे आर एक्सेप्शन। जैसे लाइव स्टॉक में मैंने बताया ब्रांडिंग, डिसबर्डिंग, डीआरनिंग, उसके लिए एक्सेप्शन है। उसी तरह से सेक्शन 27, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन 27 एग्जेप्शन है, जो मिलिट्री और जू के लिए ये सब क्रूएलिटी नहीं माना जाएगा, ठीक है। चैप्टर 4, ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, जैसे मालदार से बालू लेके आते थे, 6 स्नेक चार्मर आते थे, पैरट लेके आते, ये सब आज के दिन में नहीं दिखता है, ओके। चैप्टर 6 मिसलेनियस, जो चीज इसमें कवर नहीं किया, टिल 5 चैप्टर्स आर कवर्ड अंडर द चैप्टर 6। सेक्शन 28 अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, जहां सेविंग एज रेस्पेक्ट ऑफ मैनर ऑफ किलिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिलीजन। एनिमल सैक्रिफाइस वेरी कॉमन था, टेंपल के सामने में, पब्लिक के सामने में, एनिमल के सामने में दूसरा सैक्रिफाइस किया जा सकता था। दैट इज कंसिडर्ड वेरी इनह्यूमन नाउअडेज, ओके। बेस्ट एग्जांपल नेपाल में ये बिफोर लास्ट ईयर बैन हो गया, उसका वर्ड माय माइंड से स्लिप हो गया। They put all the buffalo cows in the one paddock, or they keep on killing by one after another, just like that. So this has been banned very seriously, but it took a lot of years to stop this one, which is, this scene is from the Nepal, okay. So religious killing of animal is permitted, okay, but जिस तरह से पहले करते थे, जैसे टेंपल के सामने ओपनली पब्लिक, वो सब बना गया। अगर आप करना है, आपका कल्चर अगर एक्सेप्ट करता है, then you should make a place or earmark the place, then only you have to do it, okay. So then only it's acceptable. That is called sacrifice for the religious purpose. Section 29, power of court to deprive person convicted of ownership. अगर कोई एनिमल क्रूएली माना गया और उस एनिमल से उस ओनरशिप को छीना जा सकता है, मतलब उसको ओनरशिप से हटाया जा सकता है, that will become the property of the government, okay. Section 30 says that presumption as a guilt in certain cases. अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसे होता है, आप एनिमल को पकड़ के ले जा रहे हैं, आपके साथ स्किन भी है, आपने पता हो सकता है आपने एनिमल उसको मारा नहीं होगा, आपने किल नहीं किया होगा, इवन देन आपको गिल्टी माना जाएगा। जैसे अगर एनिमल 10-15 लोग मिलकर कोई एनिमल को मारना चाहते हैं, बट आप खड़े हैं, उस समय आपने उस पोजीशन में रहा, इवन देन यू कैन बी प्रूव्ड एज ए गिल्टी, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन जनरल डेंजरस टू द वेटरनरी, सो दैट को प्रिजम्पशन एज ए गिल्ट, दो अपनी इंटेंशन नहीं है, बट आप उस सिचुएशन में पकड़ा गए, ओके। सो cognizability of offense. Cognizability means serious, cognizable non-cognizable. Cognizable means it comes under the IPC, okay. Criminal Act के अंदर आ जाता है। जो चीज हमने वो ऑफ सेक्शन 11 में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने बताया था म्यूटिलेशन, पार्ट ऑफ एनिमल मारना, पार्ट ऑफ द ऑर्गन काट के निकालना है, वो यल बताया जाता है। आपको एनिमल टांग के शूट करना है, दैट एन में आता है, और वो शिकार के लिए यूज करना, ये दे आर कंसिडर एज ए कॉग्निटिव सीरियस ऑफेंस, what we call is a non-bailable offense, okay. Power of search or seizure, कोई भी एनिमल आपको लगता है कि डाउटफुल है, किसी ने इंटीमेट कर दे, जाके सीज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप गिल्टी है, तो आपको सर्च वारंट भी दिए जा सकता है। सेक्शन 34 में जो सीज किया उसको एग्जामिन भी किया जा सकता है। सेक्शन 35 में ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ, अगर मान लिया एनिमल सीज कर दिया, बट उसके बारे में कौन देखभाल करेगा, दिस वाज अ बिग क्वेश्चन अर्लियर डेज। एनिमल पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता उसको क्या करना, क्योंकि उनके पास अलग से पैसा नहीं कि उसको पकड़ा हुआ एनिमल को उसको कैसे फीड करना है, कहाँ ले जाना है, वो सब सही तरह से डायरेक्शन नहीं था। नाउ देयर इज अ सेपरेट फंडिंग फॉर द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सच एनिमल्स व्हेन दे आर सीज्ड, ओके। लिमिटेशन, कोई भी अगर आदमी पकड़ा जाता है 3 महीने के अंदर अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो देन उसको फ्री किया जा सकता है। डेलीगेशन ऑफ पावर, इट्स प्यूरली टू द लोकल स्टेट, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स में इन्वॉल्व नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा सकता है। सेक्शन 38 पावर टू मेक रूल्स, जितने भी रूल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सारे इस चैप्टर मिसलेनियस चैप्टर में 6 के अंदर सेक्शन 38 के अंतर्गत बनाया गया है, ओके। सो आई एम नॉट गोइंग बिकॉज़ अनदर 5 मिनट्स इज देयर। सो दीज आर द रूल्स अंडर द पीसी एक्ट, ओके। ये बहुत सारे रूल्स है। सपोज आई जस्ट क्विकली, पेट शॉप रूल्स, एनिमल्स को दुकान रख के डॉग्स को सेल करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं घर के ऊपर टॉप में रखते हुए, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे करना है, परफॉर्मिंग एनिमल्स, देन व्हाट इज स्लॉटर हाउस का, बहुत सारे चैप्टर्स है इसमें, सारे रूल्स दे स्टार्टेड फ्रॉम 65 अप टू 2010 तक जितने भी रूल्स बनाया गया है, ऑल दे आर अंडर द सेक्शन 38। इस रूल के अंतर्गत किसको हम लोग कितना एनिमल लोड डाल सकते हैं, कितना ट्रक के अंदर कितना एनिमल ले जा सकता है, ठीक है, किस एनिमल के ऊपर आप कितना वजन रख सकते हैं, फेरियर रूल्स, ये सब इसमें डिस्कस करता है। तो आपको इसको दिस यू हैव टू रीड इट इन डिटेल। सेक्शन 39, पर्सन्स ऑथराइज्ड अंडर द सेक्शन 34 टू बी ए पब्लिक सर्वेंट, हर आदमी इसको काम को नहीं किया जा सकता, जो ऑथराइज्ड है वही किया जा सकता है, उसमें मोस्टली बाय गवर्नमेंट सर्वेंट।
Section 40, indemnity, no suit or prosecution or other legal procedure shall lie against any person who is deemed to. Indemnity means the person who is authorized only can do all these activities. कोई भी ऐसे आदमी इसको जितने भी रूल्स हमने डिस्कस किया नहीं किया जा सकता है. This was the section 40. हम लोग पहले ही शुरू किया था. This PCA contains chapters and sections. Section 41 Repeal of Act 11 of 1880 जो प्री इंडिपेंडेंस से रखता था, कुछ लॉ को उन्होंने रिपील किया है, इसको रिकंसिडर किया. सो दैट डील्स अंडर द सेक्शन 41. ओके.